Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 8th, subject English, lesson number 6, The Tempest. First, in the previous lecture, we discussed about the biography of William Shakespeare and the introduction about the lesson. Today we are going to start the second part of this lesson. Let's see what the author has written in this second part, and then after reading this I will explain you the very topic. One day there arose a terrible storm in sea. As Miranda looked out, she saw a fine ship struggling in the midst of the storm. "Oh, father," she said, quote, "if you have by your power raised this tempest, please put an end to it. What a fine ship is there struggling in the cruel waves. The cries of the drowning sailors seems to knock against my heart very hard." Unquote. Quote, "Don't do not be afraid," replied Prospero. Quote, "A single person shall not a single person shall perish. As for the storm, I have raised it for your sake. I have done it for you, my beloved daughter, who do not know who you are." Unquote. Now, for the first time, Prospero told Miranda the strange story of her life. 12 years ago, unquote, he said, quote, "I was Duke of Milan. Knowledge was my chief aim in life. Wealth and worldly possessions hardly mattered to me, leaving the management of state affairs to my brother Antonio, whose loyalty I never doubted. I devoted all my time to secret studies. Meanwhile, he grew greedy for power and possession. He bribed my ministers and plotted against me with my enemy, the King of Naples. One dark night, their soldiers took me out of my palace without caring, with you carrying in my arms. They did not dare to kill us openly, so they put us in an old and damaged ship that could hardly float and left us to perish at sea. But there was a kind old lord named Gonzalo. He was loyal to me and heart at heart, and was not in favor of Antonio's plot. He secretly stored the ship with fresh water, food, and clothes, and my precious books, which I valued more than my dukedom. Driven by favorable winds, we floated to this lonely island. Unquote. Quote, "But what is your reason for raising this tempest?" asked Miranda, who was still thinking of the drawing sailors. "Fortune has now begun to favor me," unquote, replied Prospero. Quote, "the tempest has a strange manner brought all my enemies to this island. They are in the ship you see. For the present, it is enough for you to know that much." Unquote. Then Prospero touched Miranda gently with his magic wand, and she fell asleep. So it was part 2 of this lesson. In next lecture, we will discuss para third, so part third. Now let's explain this para part second. One day there arose a terrible storm in sea. Uh, as I already told you, Prospero and his daughter Miranda, they were living on an island
lonely island, uh, and island is covered by water, and all sides by water. So once there was a terrible storm in the sea. As Miranda looked out from her window, or from the door, or somewhere else. She saw a fine ship struggling in the midst of the storm. She saw a ship, a very beautiful ship. The ship is struggling as this storm has been raised in the sea. The ship is struggling in the midst of the sea. Uh, this shows that this when this storm arose in the sea, the ship struggles. तो कहा जाता है कि ये जो मेरिंडा है, ये अपन घर से जहाँ पे ये रहती है वहाँ से देखती है कि समंदर में तूफान आया है, और वो इस शिप को देख रही है जो लड़ रहा है, जो कशमकश कर रहा है। कहाँ? इन लहरों के बीच में, जो समंदर की लहरें जो उठी हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ लहरें जो उठी, उनके बीच में कशमकश कर रहा है। तो वो क्या कहती है? ओ फादर, अपने बाप से कहती है, ए मेरे वालिद, ए मेरे वालिद मोहतरम। शी सेड, उसने कहा, ये डायरेक्ट स्पीच है, इफ़ यू हैव बाय योर पावर रेज दिस टेम्पेस्ट, प्लीज पुट एन एंड टू इट। अगर आपने ये टेम्पेस्ट, जो ये तूफान, समंदरी तूफान उठ गया है, अगर आपने ये अपने मैजिक से, अगर आपने अपने पावर से, अपने ताकत से इसको उठाया है, इसको शुरू किया है, इस तूफान को समंदर के बीचों बीच लाया है, तो प्लीज़ पुट एन एंड टू इट, इसको ख़त्म कर लो। क्योंकि मेरिंडा को पता था उसका जो फादर है, ही हैज़ मैजिक ट्रिक्स, एंड ही हैज़ his slave spirit Ariel, whose name was Ariel. Please put an end to it. What a fine ship there is there, struggling in the cruel waves. A ship is struggling in the cruel waves, in the midst of the storm. और ये अपने बाप से कहती है कि अगर आपने ये तूफान जो है, अगर आपने ये लाया है, तो प्लीज़ आप इसको ख़त्म कर लीजिए। क्योंकि ये जो समंदर की लहरें जो है, क्रूअल वेव्स, जो लहरें आती है, क्रूअल मतलब बेरहम, इनको कोई रहम नहीं है। ये लहरें जो है, ये अपने साथ इस जो शिप है, इसको अपने साथ तबाह कर रही है। तो इसलिए ये यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, क्रूअल। The cries of the drawing sailors seemed to knock against my very heart. जो वहाँ पे समंदर में, जो इस जहाज़ में जो समंदरी सफ़र करने वाले, उनको सेलर्स कहते हैं, उनकी जो चीखें हैं, वो डूब रहे हैं, उनकी जो चीखें वो बिल्कुल मेरे दिल को लग रही है। दे आर नॉकिंग माई हार्ट, वो मेरे दिल को लग रही है, और मुझे लग रहा है कि वो मरने जा रहे हैं, उनकी जो चीखें वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। डू नॉट बी अफ्रेड, रिप्लाइड प्रॉस्पेरो। तो प्रॉस्पेरो, मेरिंडा का बाप, उससे कहता है कि डू नॉट बी अफ्रेड, आप डरो मत मेरी बेटी, आप डरो मत। क्यों नहीं डरे? नॉट ए सिंगल पर्सन शैल पैरिश, कोई भी एक भी उसमें से जितने भी सेलर्स है, उस जहाज़ में जितने भी समंदरी सफ़र करने वाले लोग जो है उस समंदरी जहाज़ में, उनमें से कोई ख़त्म नहीं हो जाए, कोई नहीं मर जाएगा, उनमें से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, कोई ख़त्म नहीं हो जाएगा। एज़ फॉर द स्टॉर्म आई हैव रेज्ड इट फॉर योर सेक। तो ये जो स्टॉर्म है, ये मैंने आपके लिए उठाया है। ये जो तूफ़ान है, समुद्री तूफ़ान जो है, ये मैंने आपके लिए उठाया है। कौन कहता है? प्रॉस्पेरो कहता है अपनी बेटी से, ये मैंने आपके लिए, ये जो स्टॉर्म है, आपके लिए मैंने उठाया है। कहाँ? समंदर में। I have done it for you, my beloved daughter, who do not know who you are. उससे कहता है कि आपको नहीं पता है मेरी लाडली, आपको नहीं पता, ये जो तूफ़ान, जो समुद्री तूफ़ान जो मैंने उठाए, जो स्टॉर्म है, ये मैंने आपके लिए उठाई है। आपको नहीं पता है कि आप कौन हो। Now for the first time
प्रॉस्पेरो टोल्ड मेरिंडा ए स्ट्रेंज स्टोरी ऑफ हर लाइफ। तो मेरिंडा से अब कहता है प्रॉस्पेरो पहली बार एक स्टोरी कहता है जो अजीब व गरीब स्टोरी होती है, जिस कहानी से मेरिंडा बिल्कुल अनजान होती है, बेखबर होती है, जिस उसको कुछ पता ही नहीं होता है उसकी ज़िंदगी में क्या हादसा हुआ है। 12 years ago he said I was Duke of Milan। तो 12 साल पहले की बात है, मैं एक शहर वहाँ का राजा था, मैं ड्यूक ऑफ मिलान। नॉलेज वॉज माई चीफ एम इन लाइफ। मेरा जो ज़िंदगी का मकसद जो था वो था तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना। मुझे सिर्फ किसके साथ शौक़ था, किस चीज़ का शौक़ था मुझे? इल्म हासिल करने का। मुझे वहाँ पे अगर कोई चीज़ जिसमें मुझे इंटरेस्ट थी, दैट वाज नॉलेज। मुझे इल्म हासिल करने की बहुत ज़्यादा तलब थी। वेल्थ एंड वर्ल्डली पोजीशंस हार्डली मैटर्ड मी। वेल्थ जो दौलत है या जो रुतबा है, शोहरत है, वो मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता था। वर्ल्डली पोजीशंस मीन्स जो दुनियाई दिखावा जो है वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। दैट लीस्ट मैटर्स फॉर मी। लीविंग द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स टू माई ब्रदर एंटोनियो। तो ये किंग था, सल्तनत इसकी थी। इसने जो पूरा जो कारोबार जितना भी था वो किसके हवाले किया? अपने भाई के हवाले किया। उसका नाम क्या था? एंटोनियो। हुज लॉयल्टी आई नेवर डाउटेड। उसकी जो लॉयल्टी थी उस पर मैंने कभी शक नहीं किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था वो मेरे साथ गद्दारी करेगा, वो मेरे साथ गलत करेगा, वो मेरे साथ धोखा करेगा। आई डिवोटेड ऑल माई टाइम टू सीक्रेट स्टडीज़। मैं अपना जो वक्त सर्फ करता था किस में? पढ़ाई में सर्फ करता था, सीक्रेट स्टडीज़। क्योंकि इसके पास बहुत सारे जो बुक्स थे उसमें ये जो मैजिक्स थे या जो बाकी जितने भी ट्रिक्स थे वो ये पढ़ रहा था। मीनवाइल ही ग्रीव ग्रीडी फॉर पावर एंड पोजीशंस। लेकिन उस मेरे भाई में लालच आ गई, वो लालची बन गया। उसको वो ये चाहता था कि जितनी भी अब ये दौलत है ये मुझे ही सब मिलनी चाहिए। तो उसमें लालच आ गई। वो जो पावर, क्योंकि वो जो लोगों की इज्जत, वो शोहरत, वो मुझे जो थी, मेरे पास जो पावर था उस पे उसको उस पे उसकी नज़र थी। वो चाहता था कि ये सब मुझे मिल जाए। ही ब्राइब्ड माई मिनिस्टर्स एंड प्लॉटेड अगेंस्ट मी विथ माई एनिमी द किंग ऑफ नेपल्स। तो इसने क्या किया? जो मेरे मिनिस्टर्स थे वहाँ पे, जो मेरे वज़ीर थे, जो मेरे वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, जो मेरे साथ थे, उनको मेरे खिलाफ कर दिया। एक साजिश बनाई, एक साजिश बनाई उनसे मिलके। और मेरा जो दुश्मन था किंग ऑफ नेपल, उससे मिलके उन्होंने एक साजिश बनाई। साजिश क्या बनाई? किसके खिलाफ? प्रॉस्पेरो के खिलाफ। किसने बनाई? एंटोनियो ने बनाई, ताकि ये यहाँ से निकल जाए, यहाँ हम इसको मार डालें, ताकि जितनी भी दौलत है ये मेरे नाम हो जाए। वन डार्क नाइट देयर सोल्जर्स टुक मी आउट ऑफ माई पैलेस। तो एक अंधेरी रात में इसके जो सोल्जर्स थे, अब वो एंटोनियो के बन गए थे। पहले किसके थे? प्रॉस्पेरो के थे, क्योंकि सल्तनत इसकी थी, ड्यूक ऑफ मिलान ये था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया? इसने फौजों को भी अपने कब्जे में किया था, उनको लालच दी थी। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने हमें इस अपने पैलेस से बाहर निकाला। विथ यू कैरिंग इन माई आर्म्स। तो आप मेरे बाजू में थे, आप मेरे गोद में थे। They did not dare to kill us openly, so they put us into an old and damaged ship that could hardly float। तो उन्होंने क्या किया? वो डर गए। उनमें ये जुर्रत नहीं थी, उनमें ये ताकत नहीं थी कि वो हमें मार डाले ओपनली, कि सबको पता चले कि फलां ने फलां को मारा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमें एक जहाज़ में छोड़ दिया जो बिल्कुल डैमेज था, जो ख़राब था, जो चल नहीं सकता था। क्योंकि फ्लोट मतलब हो गया जो समंदर में तैर नहीं सकता था। एंड लेफ्ट अस टू पेरिश एट सी। तो हमें कहाँ छोड़ दिया? हमें इस समंदर में मरने के लिए छोड़ दिया। बट देयर वॉज एन काइंड ओल्ड लॉर्ड नेम्ड गंजालो। लेकिन वहाँ पे एक आदमी था जो मेरे साथ था, मेरी सल्तनत में था। उसका नाम क्या था? गंजालो। उसने क्या किया? ही वॉज
लॉयल टू मी एट हार्ट एंड वाज नॉट इन फेवर ऑफ एंटोनियोस प्लॉट। वो उसको मेरी हमदर्दी थी, उसको मेरी बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी। वो एंटोनियो के इस प्लॉट के साथ नहीं था, इस साजिश के साथ नहीं था। उसने क्या किया, ही सीक्रेटली स्टोर्ड द शिप विथ फ्रेश वाटर। उसने इस शिप में ताज़ा पानी भर दिया। फूड एंड क्लोथ्स लाए, गज़ा हमारे लिए, कपड़े लाए। और माई प्रीशियस बुक्स विच आई वैल्यूड मोर देन माई ड्यूकडम। जिनको मैं क्या मानता था, जिनको मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता था अपने इस सल्तनत से, अपनी बुक्स को, जो मेरी किताबें थी। तो उसके बाद क्या हुआ, ड्रिवन बाय फेवरेबल विंड्स वी फ्लोटेड टू दिस लोनली आइलैंड। तो जो फेवरेबल विंड्स आ गई वहाँ पे, जितने समंदर ने उस वक्त हमें मदद की, उस वक्त कोई तूफान नहीं आया। हम चलते चलते कहाँ पहुँच गए, इस आइलैंड पे पहुँच गए। But what is your reason for raising this tempest? asked Miranda, who was still thinking of the drawing sailors. ये कहानी सुन के भी, इतनी बड़ी कहानी, उसकी ज़िंदगी के साथ क्या हो, उसके बाप के साथ क्या हो, वो कहीं का राजा था, उसको निकाला, उसको ये फिक्र बिल्कुल भी नहीं थी। वो उसने अपने बाप से फिर कहती है कि आपने ये टेम्पेस्ट, आपने ये तूफान क्यों उठाया है, आपने तूफान क्यों उठा, वजह क्या है इसकी? क्योंकि उसको वो चीखें, वो लोगों के मरने की आवाज़ें उसको आ रही थी, क्योंकि समंदर में क्या, वो जो जहाज़ था वो उन लहरों में फंस गया था, और वो कोशिश करता था उन लहरों से बचने के लिए। तो अब क्या कहता है, फॉर्चून हैज़ नाउ बिगन टू फेवर मी। तो किस्मत ने अब मुझे मदद करना शुरू किया, किस्मत अब मेरी होने वाली है। कौन कहता है, रिप्लाइड प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो उसे कहता है, द टेम्पेस्ट इन अ स्ट्रेंज मैनर ब्रॉट ऑल माई एनिमीज टू दिस आइलैंड। तो इसने क्या कहा कि ये जो किस्मत ऐसी मेरी जागी कि मेरे जितने भी दुश्मन थे, मेरे जितने भी दुश्मन थे वो इस तूफान में फंस गए हैं, और वो यहाँ आ रहे हैं, जितने भी मेरे दुश्मन हैं। दे आर इन द शिप यू सी। वो कहाँ पे, इस शिप में है, वो इस जहाज़ में है। फॉर प्रेजेंट इट इज़ एनफ फॉर यू टू नो दैट मच। तो अब के लिए जितना भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन वो मैंने दी, अब आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं चाहिए। तो उसके बाद क्या किया, देन प्रॉस्पेरो टच मिरांडा जेंटली विथ हिज मैजिक वैंड एंड शी फेल asleep। तो उसके बाद क्या किया, मिरांडा को उसने जो मैजिक वैंड है, छड़ी उसके हाथ में थी, उसको मिरांडा को उससे टच किया, उस स्टिक से उसको टच किया, और मिरांडा जो है वो सो गई। तो इस सेकंड सेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि जहाज़ फंस गया है, और जो डिस्कशन चल रही है मिरांडा और प्रॉस्पेरो के दरमियान, और मिरांडा को प्रॉस्पेरो, वो जो रियल स्टोरी होती है वो असल में कहाँ के है, वो किंग है, कहीं उसकी सल्तनत हुआ करती थी, लेकिन उसके भाई ने लालच में आकर उसको वहाँ से निकाला। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट इसका है, उसमें क्या होता है, फिर जहाज़ के साथ क्या हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।